counter check. The economy is really moving the direction where the poorest of poor are really secure. I think we can ask Mr. Bharat Soni. He's a banker. He'll be able to tell us the difference between FIIs and FDIs. FDI is foreign direct investments. FIIs are foreign international investors. So FIIs are entities which come to the market to make a profit and get out. That's it. FDIs are in for a long time. Let's ask Mr. Bharat Soni. Bharat Soni साहब नमस्कार. नमस्कार राजीव जी, प्रदीप जी नमस्कार. How are you, sir? आपको तुलसी विवाह और एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. चलिए सर, एकादशी को है. राजीव जी are looking very smart. You are looking very smart. Younger लोगों को भी आप you will make them run for their persona, you know. Thank you so much, sir. This is the old look. I'm back. I've shaved my beard off and everything else. तो मैंने कहा कि भाई चातुर्मास खत्म हो गया है, विष्णु जी जाग गए हैं, तो अब तो दाढ़ी बनानी चाहिए. बहुत ही अच्छा है सर, ऐसा ही रहिए और बहुत ही यंगर लुक है ये और आप ऐसा ही रखिए. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच सर. लेकिन तुलसी विवाह तो कल है सर, आज कार्तिक एकादशी. अच्छा जी, बट थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वेरी मच सर. अभी बात हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी के धर्मपाल मेश्राम जी हमारे साथ थे और वो FIIs की बात कर रहे थे. मैंने कहा कि भाई जब वक्त मिलेगा आगे चल करके we'll talk about FIIs and FDIs and FDI. What is the difference? Because you can't confuse the two. Let's be very clear. FDI is foreign direct investment. FIIs are foreign investment institutions. Investors, institutional investors. They come in, they want to come into your market, invest somewhere, wherever, they'll make their 1%, 2%. क्योंकि आपके $2 ट्रिलियन या $1.5 बिलियन अगर इन्वेस्टेड है, उसमें से अगर 1% या 2% का भी प्रॉफिट हो जाता है, that works out to billions of dollars, and they'll take their money out. So that's not our money. Let's be very clear. That money is going to go out. Now, why do you think people don't talk about it? Please go ahead, sir. Rajiv ji, what happens? See, these FIIs, they come during November, December. Yes. Okay. And for them there is one more quarter, like that is the end of the quarter. So they make money, they will pump in the money during November, December and take away during, because their year ending is December. So, December, and our year ending is March. Yes. So उसके पहले वो सारा पैसा बना के लेके चले जाएंगे. तो आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट में जो वोलेटिलिटी और फ्रेजाइलनेस जो आता है वो इनके कारण आता है. इनको थोड़ा सा भी मिल गया चांस तो ये लोग उनके नंबर्स बढ़ाने के लिए यहाँ से पैसे लेके जाएंगे सर. बट भरत सोनी साहब, that's their job. They are foreign institutional investors. Their job is to make money for their investors. Yes, their job is not to make money for us. Let's be very clear. So what do you have to say when people, we will come to politics. I know Pradeep ji is getting impatient. No, so, sorry. But all I'm saying is, when do you think we will have a proper discussion on, has India really become a 4 trillion economy? In my opinion, we haven't. I think we'll become a 4 trillion economy by January or so. And this $4 trillion economy, has it really helped the poor? उससे गरीब आदमी का कोई फायदा हुआ है कि नहीं हुआ? मतलब जो 2 करोड़ नौकरियां आनी थी हर साल की, मैं कहता हूं 50 लाख भी आ जाए एक साल में, वो नौकरियां मिल जाएंगी, अब ठीक ठाक हो जाएंगे. मेरे और आपकी इनकम बढ़ जाएगी क्या? जो नेशन ना हो हमारा, उसमें क्या एडवर्टाइजमेंट आ जाएंगी? पूछ रहा हूं सर आपसे, भरत सोनी साहब. राजीव जी देखिए, राजीव जी क्या है कि हम लोग तो 4 ट्रिलियन इकोनॉमी तो हम लोग बन जाएंगे बाय जनवरी हम लोग बन जाएंगे सर. बाय 2027 हम लोग 5 ट्रिलियन भी बन जाएंगे जी सर. लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर क्या है सर, ये लोग ये 4 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन किसके लिए है? अमीरों के लिए है सर. जो गरीब है, मैं एक आर्टिकल रीड कर रहा था, उनका नाम है हिलाल अहमद का, टाइम्स ऑफ इंडिया में. जी सर व्हाट ही सेज, 6,000 rupees is the average income of a average family in Bihar. Per year, per annum. Per year. Yes. सर तो आप सोचिए 500 रुपया महीने में वो बेचारा, उसके लिए एक वक्त का खाना भी उसके लिए लग्जरी है सर. Yes. सर तो वो उनका हम लोग कब सोचेंगे सर?
सर हम लोग सर क्या है सर कि अभी इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, ये लोग बड़े ना हमारे फॉर्च्यून 50 में और उसमें हमारे इतने लोग आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं। लेकिन सर जब डिस्पैरिटीज बढ़ेगी, गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इंक्रीजेस, वो क्या करेगा सर? हम लोग जो रास्ते पे चल रहे, आज हम लोग सेफ है क्योंकि आज वो पेट से मोहताज नहीं है। वो जब पेट से मोहताज हो जाएगा उस दिन वो आपके हाथों में की घड़ी, आपके हाथों में की अंगूठियां, जो मिलेगा वो लेके झपट के भाग जाएगा क्योंकि वो भूख से परेशान है। सर तो जो पहले के लोग सोचते थे ना सर, जैसे इंदिरा जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ये लोग और सीडी देशमुख जी, और इन लोगों ने जो सोचा था सर वो क्या था कि ये गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर वो इतनी ज्यादा, उसको वो जो विषमता है बोलते हैं सर, वो इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि जिससे वो आदमी मजबूर हो जाए आपसे झपटने के लिए। सर देखिए हम लोग हाउसिंग सोसाइटीज में रहते हैं, आप सोचो सर कल ना स्लम के लोग आगे बोले हम लोग भी यहाँ रहेंगे आपके लॉबी में, व्हाट कैन यू डू? क्या कर सकते हो? यू कैन डू नथिंग। कितनी पुलिस उसको हटा सकती? हम लोग पुलिस वाले भी उसको कुछ नहीं कर पाएंगे सर, because the police is also living in slums. Sir, the policeman himself is living in a slum. Yes. But right. Okay, so this is a philosophical discussion. We'll have it later, and it's the most important discussion. Very unfortunately, people are now interested in the 5 states which have gone for elections and what's happening in Maharashtra. No, I just want to continue what he says. Now, Mr. Modi says, look at the growth. Now, he's applauding the growth. Global recognition. That is what Prime Minister Modi is saying. बोले इस ग्लोबल रिकॉग्निशन को आप मैच ही नहीं कर पाओगे। जो अलग अलग रेटिंग एजेंसीज ने हमको इस प्रकार से रेट किया है, एंड MSMEs have been strengthened. आप Standard and Poor के बात करो, you talk about IMF, everybody has 6.3, 6.7, 6.5. That's what Prime Minister Modi is saying. And MSMEs, he has strengthened the MSMEs. He has created 15 crore jobs. That is Prime Minister Modi is saying. बट आपका कहना है कि कौन सी बात कर रहे हो, इंडस्ट्रियलिस्ट आर लीविंग दिस कंट्री, एंड देन यू नेम्ड 3 क्लोज एफिलिएट्स, मित्रकाल जो बार बार कहते हैं, विनोद अडानी, ऑल दिस पीपल, पंकज, तो ये लोग जो देश छोड़ के गए, नाउ इज दैट एन इंडिकेटर दैट थिंग्स आर बैड हियर? इफ ग्लोबली वी आर रिकॉग्नाइज्ड 6.3, 6.5, 6.7 is the GDP growth projections by international agencies. कैसे देखते हो आप सोनी साहब? प्रदीप जी, आई विल आंसर टू दैट। सी, उसके पहले ना मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारे देश के स्मॉल, मीडियम, स्मॉल और SME के मंत्री है नारायण राणे जी। सर इन्होंने 2 दिन पहले कनकौली में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई एग्रीकल्चर के ऊपर। सर उस एग्रीकल्चर के अंदर उनको वहां के स्कूल टीचर्स और उनको बिठा के मीटिंग करनी पड़ी। सर देखिए नारायण राणे इज अ वेरी गुड लीडर, वेरी ग्रेट लीडर, और उन्होंने वहां के डेवलपमेंट, कनकौली का डेवलपमेंट के लिए बहुत किया। लेकिन आज लोगों के मन में समझ में आ गया है कि ये लोग किसी को कुछ नहीं दे पाने वाले हैं। सर फाइनली ऑल द एम्प्टी चेयर्स वर एम्प्टी एंड द टीचर्स वर आस्क्ड टू सिट इनटू दैट। Sir, that is as far as agriculture. Sir, now from manufacturing sector, the people have gone back to the agriculture because manufacturing में आजकल कुछ नहीं हो रहा है सर। सर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग किसको समझ रहे हैं? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कर काम कर रहे हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग समझते हैं। ऐसा नहीं है, सर। हाँ सर, हम लोग जब तक हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो छोटे छोटे जो यूनिट्स चलने वाले थे जी, I think we just got disconnected. We'll just be back. We'll try and get him back. We'll try and get him back. Now this is statistics versus the truth. Now yes. The truth. No, let's look at statistics. These are figures by the government of India. Manufacturing PMI in India decreased to 55.50 points in October from 57.50 points. I mean, that should be alarming. That should send alarm bells all over the place. Because what are you doing? Because everywhere the manufacturing index is coming down. Because manufacturing is going down. You're importing most of the stuff. And in spite of whatever you might say about China, we are still importing most of our parts from China. What are we doing? And the industries that are supposed to have come, set up their industries, I mean, it's going to take some time. It's not that overnight they will
And Pradeep ji, how many people will they employ? Yes, yes. These are all, how shall I put it? These are all vanity projects. Like for example, Apple comes over here. They'll set up a plant. They've already set up a plant. Tata's are already manufacturing, the iPhone over here. But how many people will they employ? Most of the stuff over there is in automation. It's all automated. These are not labor-intensive industries. Where do our people find jobs? But the Prime Minister says that he's strengthening the MSMEs. MSMEs को इस प्रकार से हमने strengthen किया, हमने 15 करोड़ jobs create किए, इसमें करीबन 3.5 crore of a woman alone. That's what he says. Yes. Now, if he says now, but a week ago, 15 days ago, Mallikarjun Kharge was accusing the government that MSMEs is really collapsing. MSMEs are not doing well. Where are the jobs? Pradeep ji, the fact is that the Prime Minister's figures are based on the amount of loans which have been disbursed to MSMEs, not in terms of the output which has come from MSMEs. We will know the output only next year. कल अगले साल जाकर के मालूम पड़ेगा कि वास्तविकता में MSMEs ने क्या, what is it that has been manufactured, and you know exactly how the system works. You have somebody who's very close to the government. You have somebody who's very close to the small scale industry ministry. You have somebody who's very close to the MSME. At the end of the day, it's very easy to get a 10 lakh rupee loan or a 15 lakh rupee loan or a 20 lakh rupee loan or a 5 lakh rupee loan, and that will be listed as growth of MSMEs. But actually, is it going into manufacturing? I don't think so. That is what we need to take the Prime Minister's word against the Congress President's word. Mallikarjun Kharge says there has been no growth where MSMEs are concerned. In fact, MSMEs are shutting down. That's what Mallikarjun Kharge's charge was around a week or fortnight ago. Now, the Prime Minister has recently given a statement contrary to that. That look, it is being strengthened. I have created 15 crore jobs. I have created women employment. And then you got all these fancy figures where the global credit rating agencies are concerned, where they are projecting absolute beautiful picture where India is concerned. And probably India is doing well. No, but where there is a global recession all across the world. Pradeep ji, the Prime Minister is right. Mr. Mallikarjun Kharge is also right. All the international rating agencies are also right. Let's be very clear. In India, everything is the truth. The fact is, the MSME sector, according to the government, has grown because the criteria is different. Mallikarjun Kharge is looking at the number of units that are actually functioning and how many people are they employing. And the rating agencies are looking at the overall picture. You know, in terms of macroeconomics, India is really growing. So nobody's telling a lie. But at the end of the day, people are not getting jobs. People are not getting jobs. Kharge said 20,000 MSMEs have shut in the last 3 years. He says government jobs, 30 lakh jobs are not filled up. The government has not recruited people for 30 lakh jobs. He says 13.75 lakh citizens have given up their citizenship. Now what does this portray? That is what the Congress is asking this government. What does this portray? And then even he says, बद्रकाल के आपके करीब के लोग वो भी भाग रहे देश छोड़ के, चाहे वो विनोद अडानी हो या I don't think पंकज ओसवाल हो. लेकिन प्रदीप जी, I don't think they're running away. The fact is, they may have got a golden passport. They've got a golden passport from the European Union, but they're not shutting down their operations in India. They're going abroad because of better opportunities, but their India operations continue. So, I mean, one has to be fair. Let's be very clear. Even as Indians grow in terms of the world economy, even as India starts to produce its own multinationals, you will find people who will get other passports. Like for example, for instance, the American economy is not collapsed. But look at the number of American multi-billionaires who have got citizenship of places like Monaco, because these are tax havens. That does not mean that the American economy has collapsed. Now that's what is going to happen in India. Indian multi-billionaires will also follow their counterparts in the West, because it's more convenient. So they will leave places that has more transparency. They don't want to be transparent. I mean, anybody wants. Most of them don't want to do that. They don't want to pay that much of tax. Let's be very clear. In terms of personal income tax, there are lots and lots of places in the world, as Dr. Subramaniam Swamy has been saying now for a long time, and I agree with him totally, that in certain areas, you have to abolish personal income tax.
Because the Indian people are paying tax at every turn. आप हर जगह GST दे रहे हैं ना, हर जगह आप रोड टैक्स दे रहे हैं, BMC का टैक्स दे रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, न जाने कौन कौन सा टैक्स दे रहे हैं, उसके ऊपर आप इनकम टैक्स भी दें. For what? ना, and in terms of income tax collection, personal income tax हिंदुस्तान में कितने लोग देते हैं साहब? उसके पीछे आपने इतनी बड़ी मशीनरी लगा रखी है. In fact, it is more expensive to collect tax than the amount of tax collected. Now, आगे जाके the very facts, where they catch the Prime Minister on the wrong foot was the 2 crore jobs that he had promised. 2 crore job आपने promise किया था, उसका क्या हो गया? आपने कहा कि price rise को आप control करेंगे, और उसका क्या हो गया? यानी बार-बार inflation not control, employment you're not, though the Prime Minister said 15 crore jobs have been created by MSMEs. They come up with facts that your own employment in the graphs and statistics show where is the employment and what current state क्या चल रहा है, how much. In fact, in the government job, as I say, इतना fill नहीं किया आपने. आगे जाके what Rahul Gandhi is trying to continuously talk to the people and tell them that 1% hold 40% of the wealth, 50% poor, pay 64% GST of all time, 52%. लेकिन प्रदीप जी, his statistics are 52% youth unemployment, 52% youth unemployed. That's Rahul Gandhi's figure. Sir, when was the figure lower than 50%? आप मुझे बताइए ना, हिंदुस्तान में कभी अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर कभी 50% से कम हुआ है? आज तक कभी नहीं हुआ सर. Let's be very clear. और जहां तक के less than 2% of the people holding 80% of the wealth or 90% of the wealth, that has been, sir, that has been in school economics. We have been studying from schools. Yes, sir, even before school, it's been there since time immemorial. Let's be very clear. पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, आज के राजा महाराजा जो हैं हमारे सारे के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं. एक जमाने में, and by the way, it is the industrialists and it is the rich people who have always made governments and thrown them and destroyed them. Remember Siraj-ud-Dawla, Jagat Seth. It is Jagat Seth who financed the East India Company against Siraj-ud-Dawla. Yes, yes. So, I mean, this is nothing new. The enemy is within. Sir, all I'm saying is, these are great talking points. And at the moment, by the way, they seem to be working for the Congress. अगर आप देखें, जितने भी अभी तक ओपिनियन पोल्स आए हैं हिंदुस्तान में, ये 5 स्टेट में, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, I don't think Mr. Bharat Soni will be able to come back because I think his phone is ganged up. I think. So, ये चारों पांचों जितने भी स्टेट हैं, यहाँ तक कि तेलंगाना में भी प्रदीप जी, the Congress seem to be doing very well. Sir, तो अगर मान लीजिए कांग्रेस 5 स्टेट में इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है, it will be a very big setback for the BJP. Sir, the Garib Kalyan schemes of the Congress are too good for the BJP to match, and probably the BJP doesn't want to go in that particular direction. Yes. For whatever reason, the BJP doesn't want to go into the Garib Kalyan schemes. They are trying to. But Rahul Gandhi has done well. Let's be very clear. That means Rahul Gandhi is really doing well. 200 यूनिट फ्री है, महिलाओं को 10,000 रुपया प्रति माह, the woman head, महिलाओं को free transport, old pension scheme, old pension scheme, electricity relief for the farmers कर्ज, जो 5 गारंटी, 10 गारंटी, 7 गारंटी, 8 गारंटी जो अलग-अलग स्टेट में जिस प्रकार से वो कर रहे हैं, and the BJP is not matching it. BJP is not matching it. Now, when we always talk, where states are concerned, national security is not an important factor. Where states are concerned, nationalism is not an important factor. That comes only in the general elections. Yes. So in the state elections, I think we got Mr. Bharat Soni. Yes, sir. In the state elections, we have problems which say a hungry man, जैसे महात्मा गांधी कह रहे थे कि only a food can, even God cannot approach a poor man except in the form of food. Right, Bharat So Soni sir. if you are providing free food for the poor, as the Congress is doing the Garib Kalyan schemes, I don't find nowhere the 5 states going to be tough for BJP. So Bharat Soni sir, can you hear us? I'm back, sir. I'm back. He's back. I don't know what happened. Like Arnold Schwarzenegger, he's back. Yes. Now, Bharat Soni साहब, तो चिरंजीवी योजना जो है आपकी कांग्रेस की, मुझे लगता है कि उसको लेकर के जो 5 राज्य जो अभी चुनाव के लिए जा रहे हैं, सर हर ओपिनियन पोल आपको आगे दिखा रहा है. ये करिश्मा कैसे हो गया सर? ये कैसे हो गया? इतने बड़े-बड़े चैनल जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, सर यू आर बीइंग अनफेयर नाउ, वो भी बोल रहे हैं आप आगे. सर जी न्यूज बोल रहा है आप आगे. ये क्या हो गया? सर जितने राजीव जी जितने चैनल्स को हम लोगों ने बैन किए हैं इंडिया अलायंस ने,
वो सारे लोग बोलने लगेंगे सर, क्योंकि वो स्कीम में ही दम है सर। और जिस प्रकार से राहुल जी वहां पर गए उस हॉस्पिटल में, और जो कैंसर पेशेंट है वो अडानी कैपिटल में काम करता है सर जी सर, इसलिए वो जिस प्रकार से सर पहले 25 लाख था, अभी 50 लाख कर दिया है सर। और हम लोग शुरू से, राजीव जी देखिए, हम लोग पहले भी, प्रदीप जी, हम लोग पहले भी आपसे जब बहस करते हैं तभी भी हम लोग बोलते थे कि आप देश में हेल्थ जो स्कीम है गरीब लोगों के लिए, उनके लिए अच्छी बनाइए। जब तक सर हम वो गरीब लोगों को, सर क्या है इसका डबल डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट है सर। अगर गरीब आदमी बीमार पड़ेंगे और एपिडेमिक होगा तो हम लोग सब लोग भी उससे इफेक्ट होंगे। इसलिए हम लोग को उनको अच्छा रखना है सर। वी कैन टेक केयर ऑफ अवर सेल्फ। हम लोग जो एक मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास के लोग हैं वो हम लोग अपना ध्यान रख सकते हैं, लेकिन ये गरीब तबके के लोग हैं, ये बीएमसी के हॉस्पिटल, स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में जाते हैं, तो सो उनको देखना ही पड़ेगा। इसलिए सर जो चिरंजीवी योजना है वो बिल्कुल है। और सर राहुल गांधी जी ने तो ये कहा है कि चिरंजीवी योजनाएं हम लोग पूरे देश भर में लगाएंगे जी सर। 2024 में आने दीजिए उनको सर जी। आप अभी राजस्थान में 25 से 50 करेंगे। 50 कर दिया सर, कर दिया 50 हो गया सर, 50 हो गया, 25 से 50 हो गया सर। बट यू नो, in fact I was watching one of these lovely channels that the Congress really loves, and they were also saying कि 25 से 50 हो गया, but the BJP is being very stubborn here. I don't know why. क्या हो गया बीजेपी को? बीजेपी हम फ्रीबीज नहीं देंगे, हम ये नहीं देंगे, हम वो नहीं देंगे। बड़ा अजीब मसला लग रहा है। क्या हो गया सर भरत सोनी साहब बीजेपी को? राजीव जी, सी बीजेपी को सर, बीजेपी क्या है सर, अभी वो बौखला गए सर, उनके बौखलाहट में ये सब कुछ कर रहे हैं सर। उनको पता चल गया है कि ये 5 राज्यों में कांग्रेस आ रही है, और ये 5 राज्यों में जैसे आएगी उसके बाद हमारे इंडिया अलायंस की मीटिंग होगी और हम लोग वहां पर सीट एडजस्टमेंट्स की बात करने वाले हैं। तो उनको ये पता चल गया है सर कि अभी उनका जाना तय है, उनको निश्चित है जाना, तो उस हिसाब से वो बौखलाहट में ये सारा काम कर रहे हैं सर। लेकिन सर एक छोटी सी बात आपको कह दूं, इसके पहले के प्रदीप जी सवाल पूछे हमसे, एक छोटी सी बात है इसी शैली में, जरा माइंड मत करना। और आप माइंड क्यों करेंगे सर, आप तो हमारे मित्र हैं सर। आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी बड़ी रैलीज हो रही हैं सर, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी। कहीं आम आदमी पार्टी वो गुजरात वाला कुछ कारनामा तो नहीं कर देगी आपके साथ राजस्थान में? सर हर पार्टी को सर, विधानसभा के अंदर हर पार्टी को अपने, सर हम लोग ने जो सीट एडजस्टमेंट्स की और सारी बातें की थी वो लोकसभा के लिए की है सर जी। सर ये सारा हो जाने दीजिए सर। अभी सबका एक कॉमन मकसद सबका एक ही है सर कि सर बीजेपी जैसी जो पार्टी है उसको आने से रोकना है सर। तो वो हो जाने दीजिए, ये दिसंबर 3 हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद सर सारी बातें उसके ऊपर ही होगी सर। महाराष्ट्र के अंदर मोदी जी का, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कहना है कि 3 तारीख का रिजल्ट लीक हो चुका है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, लीक हो चुका है, बीजेपी जीतने वाला है। That's what Modi साहब is saying. But you know, just come back. प्रदीप जी, ऐसा अगर देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो ये बहुत बड़ा सीरियस चीज है सर, क्योंकि उनको कैसे पता चल गया सर सर प्रदीप जी देखिए, मोदी जी न तो ज्योतिष है, न तो वो ज्योतिष शास्त्र के व्यक्ति है, तो उनको कैसे पता चल गया? बड़े ज्योतिषी, क्या बात कर रहे हैं? हमारा कितना साफ हो रहा है सर, सारे ज्योतिषी फेल हो गए कि राजस्थान में जैसे पेपर एग्जाम के पेपर लीक हो रहा है, वैसे रिजल्ट भी लीक हो गया है, एंड वी आर विनिंग। सर हम लोग मोदी जी को बधाई देते हैं अगर ऐसा है तो सर। देश की जनता ने सोच के रखा है, देश की जनता ने अभी तक वोट आज डले होंगे सर। No, one thing about I want to know that nationalism, as we were talking, बजाज साहब से बात करें, security, nationalism is not a state. State elections में इसका गिनती होता ही नहीं, nobody votes on that particular thing. वो आपके गरीब कल्याण योजनाओं के वोट्स है, उनको बोला हमारे घर में चावल आ रहा है, हमारे घर को टैक्स नहीं भरना है, हमको इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिल रहा है, दैट इज गैस। सबसे चीपेस्ट राजस्थान, आपका चैलेंज है पूरे देश में सबसे चीपेस्ट गैस राजस्थान में मिल रहा है। मोदी, मगर जेपी नड्डा जी ने कन्हैयालाल मर्डर के इशू को उठा लिया, वहां पर उनका आरोप है अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी का, कि पीएफआई का रैलीज खुलेआम हो रहा है राजस्थान में, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ हो रहा है पीएफआई का रैलीज।
नाउ दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न दिस है, एंड आगे जाके बोले कि गहलोत सरकार ने स्पेशल कोर्ट्स उन्होंने बनाए नहीं, बिकॉज दे हैव नॉट मेड स्पेशल कोर्ट्स। कन्हैया लाल मैटर में जस्टिस नहीं मिल रहा, कन्हैया लाल मर्डर में, बिकॉज स्पेशल कोर्ट्स है ना 18 महीने से लैंग्वेजिंग, एंड एनआईए हैज फाइल्ड दिस केस, एनएसए। तो ये is this going to affect the elections the way BJP is highlighting this? How do you think, Soni sir? सर प्रदीप जी, कन्हैया लाल मर्डर केस के जो आरोपी है, कन्हैया लाल मर्डर केस के जो आरोपी है, उन आरोपी को ये मर्डर होने से 3-4 दिन पहले हम राजस्थान की सरकार ने पकड़ लिया था। दे वर अरेस्टेड। उनको छुड़ाने कौन आए थे सर? उनको छुड़ाने बीजेपी के ही लोग आए थे सर। और जो कन्हैया लाल मर्डर केस में का जो एक आरोपी है आतिक करके, आतिक के क्या उसका नाम है सर? उनका नाम है रियाज अतारी, मोहम्मद रियाज उनका नाम है सर। ये गुलाबचंद कटारिया जी के जो आसाम के गवर्नर हैं उनके पोलिंग एजेंट थे सर और बीजेपी के एक्टिव वर्कर है। और सर देखिए, इन लोगों ने ये पकड़े जाने के बाद ये हम लोगों ने तो इमीडिएटली उसको अरेस्ट कर लिया बाद में, लेकिन अरेस्ट होने के बाद ये लोगों ने वो केस किसको दिया है? एनआईए को दे दिया जी सर। अगर और अभी बोलते हैं सर अभी एनआईए जवाब देना सर एनआईए ने जवाब देना चाहिए कि वो केस कहां पर है, उसके ऊपर क्या आगे कार्रवाई हुई, उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे सर? राजस्थान गवर्नमेंट इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, इसके ऊपर एनआईए ने केस हाथ में लिया है। एनआईए बताए हम लोग सबको। और सर रही बात उनको रिहैबिलिट करने की और कॉम्पेंसेशन देने की, जो बेचारे विक्टिम्स हैं उनको, वो ऑलरेडी राजस्थान सरकार और गहलोत जी ने कर दिया है सर। 50 लाख रुपए उनको कॉम्पेंसेशन दिया है और दोनों बच्चे को जिन्होंने बहादुरी बताई उनको पकड़वाने के लिए उनको जॉब भी ऑफर हुआ है। और उसमें भी जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय के रूल्स है उसको भी रिलैक्स करके उनको किस प्रकार से लिया जाए वो भी किया हुआ है सर। लेकिन सोनी साहब, चलते चलते ये पनवती का क्या मैटर हो गया सर? अभी हर जगह पे पनवती ये क्या है मतलब मैटर सर? देखिए सर ये क्रिकेट की बात है सर। इस क्रिकेट की बात को हर किसी ने पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए सर। हम लोग ये सारी लैंग्वेज जो यूज करते हैं वो क्रिकेट में यूज करते हैं सर। और सर देखिए, शुभ हम लोग मुहूर्त निकालते हैं, शुभ होता है, अशुभ होता है। जब शुभ होता है तो अशुभ भी होता है सर। उसी प्रकार से अगर ऐसा शब्द जो हम लोग राजनीति में लेंगे और हमारे जो किसी भी पार्टी के लीडर्स हैं उनके बारे में लेगा तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा, किसी भी विरोध पक्ष के लिए या रूलिंग पार्टी के लिए। ये शब्द हम लोग राजनीति में नहीं, उसको क्रिकेट की जगह पे ही रखना चाहिए और उसको क्रिकेट से यहां पर नहीं लाना चाहिए सर। ऐसा हम लोग समझते हैं सर। लेकिन राहुल गांधी जी तो उसको राजनीति में ला रहे हैं ना, रैली में तो उन्होंने इस्तेमाल किया। राहुल गांधी जी ने जालोर के रैली के अंदर जो कहा वो लोगों ने बोला, वो रिपीट किया उन्होंने सर। वो पूछ रहे अच्छा ऐसा क्या, वो है क्या? He did not speak on his own. वो खुद नहीं बोले सर, लेकिन उसके बाद ही रिपीटेड अगेन। और देश के प्रधानमंत्री को सर, देश के प्रधानमंत्री चाहे हमको 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड और वो क्या मूर्खों का सरदार, उनकी गरिमा से नीचे उतर के कुछ भी कहे, जर्सी गाय। मगर आपने राहुल गांधी जी को जननायक बोल दिया है। कांग्रेस कॉल्स राहुल गांधी जननायक, मगर मोदी जी का कहना है कि 2014 से 20 बार लॉन्च हो चुका है, ये रॉकेट ऊपर लॉन्च नहीं होता है। दैट इज व्हाट बीजेपी का आरोप है। हाउ डू यू मैच इट? जननायक इज एक्सीलेंट एंड दे आर सेइंग लॉन्च इन योर 20 बार लॉन्च हो चुका है राहुल गांधी 2014। प्रदीप जी, हमारे नेता को हमने क्या कहना वो तो हम पे छोड़ दीजिए सर। हमारे नेता को तो हम जननायक बोल सकते हैं। और सर हमारा नेता 4096 किलोमीटर चला है, उनको एकाध को तो बोलिए 500 किलोमीटर चले जी ना सर। तो जननायक ने 3 राज्यों में करके दिखाया जो करने का था वो सर। और वो गारंटीज जो हम लोग दे रहे वो भी हम लोग ने पूरी करके दिखाई। तो सर मोदी जी प्रधानमंत्री है सर। हम लोग सबको उनको रिस्पेक्ट देते हैं सर। मोदी जी को जो बोलना हो, लेकिन देश की जनता तय करेगी कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, अगली कौन सी पार्टी देश पे राज करेगी,
और इन 5 राज्यों में कौन सी पार्टी राज करेगी वो वहां के लोग डिसाइड करेंगे सर। आपके मुताबिक कौन जीत रहा है सर? सर हमारे मुताबिक हम लोग 5 राज्यों में हमारी सरकार बना रहे हैं सर, और जो हमने वायदे किए हैं उन सारे वायदों को पूरे करेंगे, क्योंकि हमने वो ही वायदे किए हैं जो हम लोग उसका पूरा कर सकते थे। But I'm really impressed, Bharat Soni Saab, with your performance in Telangana, which is amazing, really. You actually forced KCR to say that Congress is not likely to get more than 45 seats. Now, for Mr. KCR to say something like that, that means the number of seats you will get will probably be around 80 or 90, yes, or definitely above 55, 60, which is amazing. So the gentleman who's leading your Telangana unit, Mr. Revant Reddy, must be doing a fantastic job. Bharat Soni Saab. सर हमारी जॉइंट सर एक कलेक्टिव लीडरशिप का काम है सर, जो तेलंगाना में सारे हैं, और वो वहां की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से ये लोग भी हमको बता रहे, और सर अगली गवर्नमेंट का जो फेलियर है वो भी लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से वो लोगों ने उन्होंने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। तो इसमें तेलंगाना के सर देखिए, पहले भी तेलंगाना स्टेट बनने में कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ था जी, लेकिन उनको नहीं देते हुए केआरएस बन गए उसके अंदर। लेकिन फिर भी अभी लोगों को पता चलने लगा है कि किस प्रकार से लोग उस राज्य की जनता को मूर्ख बनाया गया, और उसके हिसाब से अभी ये जो होने जा रहा है सर वो उसके हिसाब से है। प्रदीप जी, AJL रेड्स जिस प्रकार से the BJP, not the BJP, more than BJP, the enforcement directorate, but आपका, you always believe that ED, CBI, income tax are armies of BJP, और जिस प्रकार से Associated Journals पे रेड हो गए 752 crores worth property attached in 5 states. मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कहना है कि zero tolerance on corruption, but the Congress says this is because Prime Minister Modi and the BJP believes that they are rattled in the 5 states. 5 states you're going to come clean sweep होने वाला है, तो desperation में मोदी जी ये रेड्स करा रहे हैं आप पे. How do you see that? प्रदीप जी देखिए, आप ना प्रदीप जी आप एक ना लीगल पर्सनालिटी है सर. सर देखिए, आप इसको कायदे के हिसाब से देखिए, इसके पहले की इंक्वायरीज और रेड्स और सब कब हुई थी? जब कोई दूसरा इलेक्शन था. उसके बाद अब ये इलेक्शन है तब ये हो रहा है. सर लेट द लॉ टेक्स हिज ओन कोर्स. सर अगर हमारे लोग उस पर जिम्मेवार रहेंगे, हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन के फ्रेमवर्क के दायरे के बाहर कुछ काम किया रहेगा तो हमें भी पनिशमेंट होना चाहिए. सर हमारे देश की जो संविधान है वो संविधान के तहत अभी तक हमारी लॉ एनफोर्सिंग जुडिशियरी अभी तक खत्म नहीं हुई है सर. वी आर नॉट पाकिस्तान. अभी तक हमारे देश में लॉ, जुडिशरी, चीफ जस्टिस सब में विश्वास है सर, और उस विश्वास के तहत सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर्स पास किए गुजरात के हाई कोर्ट के ऊपर और राहुल जी को बहाल किया. तो सर एसोसिएटेड जर्नल, नेशनल हेराल्ड केस, इसमें सर लेट द लॉ टेक हिज ओन कोर्स. और सर मैं in any event the case was filed by Dr. Subramaniam Swamy. In any event, so it is that same case which is going on right now. So आपने आपका जो एग्रेशन है चालू रखा है. राहुल गांधी जी क्लेम्स, इट टेल्स एवरीबॉडी, जब आप पेट्रोल के बिल भरते हो तो आधा पैसा अडानी को जाता है. जब इलेक्ट्रिसिटी के बिल सामान्य लोग भरते हैं तो आधा पैसा अडानी को जाता है. फिर अलग जेब कतरों का भी उन्होंने जिक्र किया. जेब कतरे जब तीनों को इन्वॉल्व करके नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और अडानी जी, कि कोई लोगों को ध्यान भटकाता है और अडानी जी कैसे जेब से पैसे, तो नो दीज थिंग्स भले बड़ा सभा में वो बोल रहे हैं, बट इट इज स्टिकिंग टू द माइंड्स ऑफ द पीपल. कंटिन्यूसली हिट करने से एक नेक्सस सामने बाहर आ के. डू यू थिंक ऑल दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन द इलेक्शन इन 5 स्टेट्स? सर देखिए प्रदीप जी थोड़ा सा मैं आपके व्यू से थोड़ा डिफर करूंगा सर. सर देखिए, हम लोग अडानी जी के खिलाफ नहीं है. अगर अडानी जी मोनोपोलिस क्रिएट नहीं करे. सर देखिए, राजस्थान में अडानी जी का काम चलता है, हमारे दूसरे राज्यों में भी उनका काम चलता है. हम लोग उनके खिलाफ नहीं है, हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं सर.
लेकिन अगर अडानी जी मोनोपोलिस क्रिएट करेंगे, जैसे मुंबई एयरपोर्ट के जीवीके को हटा दो प्रेशर डाल के और खुद ले लो, हाँ, वो बॉम्बे सबर्बन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में खुद घुस जाओ, हाँ, और फिर बाद में मीटर वो कंप्यूटराइज मीटर लगाओ और सबके रेट्स बनाओ। सर ये सब अगर जो मोनोपोलिस क्रिएट करेंगी तो एक दिन ऐसा आएंगे सर, हम लोग देखिए मोनोपोलिस्टिक अप्रोच में से हम लोग नेशनलिज्म में आए थे सर। 1969 में देखेंगे तो देयर वर वेरी फ्यूअर पीपल हु वर होल्डिंग द बैंक्स, वी मेड, हम लोग उसको फिर से वापस प्राइवेटाइजेशन में ला रहे। सर प्राइवेटाइजेशन इज नॉट बैड, but sir privatization will not give employment to OBCs, will not give employment to SCs, privatization will not give any employment to the people who are downtrodden। सर बताइए ना, प्राइवेट कंपनीज में कितने एससीज को उन लोगों ने लिया, कितने ओबीसीज को काम पे लिया, सर इनके लिए जॉब्स कहाँ है? लेकिन भरत सोनी साहब, there is a matter of principle involved, and I don't know why the Congress is not taking that up. I would love to take it up if I had the resources, very frankly speaking, because all these assets that are created, they are assets of the country. Yes. Whether it's airports, whether it is airlines, whether it is the PSUs, whether it is the ports or the airports, these are assets of the country. Now, what is the legal position with regard to privatizing these national assets? I really don't know कि ये सारी राष्ट्र की संपत्ति है सर। ये राष्ट्र की संपत्ति हम किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को कैसे दे सकते हैं, किसी प्राइवेट बिजनेसमैन को कैसे दे सकते हैं? दिस इज समथिंग दैट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू कम टुगेदर टू वर्क आउट। अगले दिन जो अभी बात चल रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इंडियन रेलवेज को भी प्राइवेटाइज करने की बात हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप मुझे ये बताइए, तो मतलब भारत का तो कुछ रहा ही नहीं। इसका मतलब ये हो गया ना, भारत सरकार अलग है, जो प्रेजेंट रूलिंग पार्टी है वो अलग है, भारत सरकार अलग है। द स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द डे। सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेट। टुमारो यू विल सेल ONGC ऑल्सो, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो इंडियन ऑयल ऑल्सो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ऑल्सो, भारत पेट्रोलियम ऑल्सो। इनफैक्ट ONGC के जो ऑयल फील्ड्स हैं वो क्या था प्रदीप जी, वो D3 बेसिन, केजी बेसिन में, केजी D6 बेसिन में या D3 बेसिन में, यू नो विच कंपनी डिसाइडेड टू ड्रिल obliquely and suck out all the oil of the ONGC oil field? Now my point is, what is going on here? The Congress has to take a stand. That's all that I'm saying. Bharat Soni Saab, do you think you'll take a stand? Sir, Congress under the leadership of Mallikarjun Kharge ji and Rahul ji has already taken a very tough stand. Sir, आने वाले दिन हैं वो बताएंगे सर हम लोगों ने क्या स्टैंड लिया है और किस प्रकार से इसको फिर से, सर we will have to undo everything what they have done. Sir, that will take another 2 to 3 years to undo all those things what these people have done. ऐसा हुआ है सर, बार बार ऐसे बहुत बार हुआ है कि सारा का सारा रिजर्व बैंक का सोना बेच दिया, 1,75,000 करोड़ रुपीस वो राइट ऑफ कर दिए, वेव ऑफ कर दिए, है ना सर। सर तो इस प्रकार से हमारा देश नहीं चलेगा सर। और जब तक हम लोग, सर देखिए सर, आप राहुल जी की बात ध्यान से सुनिए सर, मैं उनका बड़ा आर्डेंट फैन रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो उसको समझा के बोलते हैं, वो कुछ झूठ नहीं बोलते। वो क्या बोलते हैं, अगर ये पैसे हम लोग गरीबों में नहीं देंगे तो ये जो साइकिल, इकोनॉमी की साइकिल जो चल रही है वो नहीं चलेगी, और उसके कारण हम लोग फिर से जो पुराने इसमें थे, जो हम लोग ने तरक्की करके आए हैं सर, उसमें हम लोगों को तकलीफ होने वाली है जी। और प्रदीप जी, what Bharat Soni said makes a lot of sense, because at the end of the day, if you're going to privatize everything, where are the jobs going to come from? Yes. All the OBCs are asking for reservations and jobs. What reservations? Where reservations in the air. Where are jobs? You know, 250 plus camps मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, कहा कि 250 प्लस कैंप्स है बीजेपी। नाउ व्यापम से लेके एवरीथिंग, चुनावी रैली में घोषणा किया कि वी आर गोइंग टू रीओपन द स्कैम्स। आर यू रियली गोइंग टू डू इट, और जस्ट चुनावी घोषणा है? अगर ये स्कैम्स है
बिकॉज बीजेपी पे आप पे आरोप है परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण। तो भ्रष्टाचार सचमुच ओपन करेंगे 250 प्लस स्कैम्स ओपन इन्वेस्टिगेशन करके। Are you going to do it? Sorry, sir. जो मुझे प्रदीप जी, जो मुझे फीडबैक मिला है ना, वो हम लोग कैसे देखिए सर, इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा जी की हार हुई थी, तो एक ना शाह कमीशन हुआ करता था जी। He was inquiring into the atrocities of the emergency, yes. सर वो क्या करता था, आज सुबह 8 बजे शाह कमीशन मिला, उन लोगों ने समोसा खाया और उपमा का नाश्ता किया और वो लोग ने मीटिंग किया, 12 बजे वो लोग लंच किया, ऐसे सब न्यूज आते। तभी नहीं टीवी इतना ये नहीं था सर। तो उस प्रकार से हम लोग कुछ उनके पीछे नहीं लग जाएंगे सर। हम लोगों को जो डिरेल्ड ट्रेन है उसको ट्रैक पे लाना है सर, और साथ साथ उसके साथ वो भी करेंगे सर। उनको सर राहुल गांधी इज ए पर्सन हु विल नॉट लीव एनी पर्सन, वो उनके पीछे लगा रहेगा। आप उनको पप्पू बोलो या कौन सा मूर्खों का सरदार बोलिए, जो बोलने का वो बोलिए, he is very much focused and we are proud of that. No, but you're advertising as Jannayak, and that is sticking very well among the people. Jannayak, Rahul Gandhi, fantastic. So in effect, you're winning 5 states according to you. Yes, Rajiv ji. Next time I come on the show, I would be, sharing that happiness with you all. Like wonderful. With one Bharat Jodo Yatra. और सेकंड भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या होगा सर? लोकसभा। सेकंड भारत जोड़ो यात्रा इस बार होगी, लेकिन वो लास्ट टाइम जैसे नहीं होगी कि जो पूरा चले थे ना, ऐसा नहीं रहेगा। उस एरिया में जाके वो व्हीकल से, क्योंकि ना सर हम लोग 2024 पे कंसंट्रेट कर रहे हैं ना, अगर हम लोग भारत जोड़ो पे जो कंसंट्रेट करने लग जाएंगे तो शायद थोड़ा सा उसमें ये हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा या उसको थोड़ा सा साइड ट्रैक हो जाएगा। इसलिए हम लोग उसको एक अलग तरीके से कर रहे हैं, तो वो आएगा थोड़े दिन में। अभी हमारे पास भी उसकी सारी बातें नहीं आई है, लेकिन वो जो पहले पैदल हुआ करता था वैसे इस बार नहीं होगा, ऐसे हमें पता चला। अभी श्योर नहीं है, AICC का ऑफिशियल अपडेट आया नहीं है सर। राइट, थैंक यू वेरी मच भरत सोनी साहब फॉर जॉइनिंग अस। इट्स बीन अ ग्रेट डिस्कशन, really truly lovely, and love talking to you about economics and about banking and the financial sector. That's really and truly wonderful. One day we'll have a complete discussion on that. That will be really and truly wonderful. भरत सोनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एकादशी की और तुलसी विवाह की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू राजीव जी, थैंक यू। So Congress very confident of forming the government, or at least being part of the government in all 5 states. क्योंकि मिजोरम में I think they'll be probably part of the government. That's what they think. BJP will only get Mizoram because the border state doesn't want to be against the center. No border state will want to be against the center. I'm not sure. The Congress is very confident of Mizoram. I don't know how. Maybe the old MNF has switched sides again. But the point is, how will he survive if you are against the center and you are in the border? Anyway, it's a different how is economics. How is Manipur survived, sir? They are a BJP ruled state, और वहाँ पर क्या हो रहा है? There's a total economic blockade which the cookies have imposed on all the other areas, and I mean I don't know what's happening over there. But still, you got a BJP government there. Yes, you do. In spite of all the problems. Yes, you do have a BJP government over there, just a government in name, and really and truly sad. No, and in fact, I'm waiting for the good news from the Uttarakhand tunnel collapse. Yes. I hope we are able to rescue all our miners. I really and truly hope that happens very very quickly. They've been there inside for a long time. I think the last I heard only 3 more meters were left. सिर्फ 3 और मीटर उनको काटने थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज रात तक 11 या 12 बजे तक सब लोग बाहर आ जाएंगे। That will be wonderful, something to celebrate, and really and truly that will be something. But the only thing is then you'll have to really look at your policy.